Hi Amit, hi Anjum, welcome to Bollywood Global. And how are you doing? How's everything going? Very good. How are you, brother? All well, going good. I'm doing good. Thank you so much. So the second season of Mirzapur, it sees both of your characters, evolve and attain more depth as compared to the first one. Amit, your character, it suffers. Initially, it's full of confidence, but then it suffers a blow in the gut when all his people are murdered by Kalin Bhaiya and his gang. And for you, Anjum, your character also changes the course of its life. So I would want to understand from you what Mirzapur's second season has to offer in terms of both your characters. If you could explain without giving into too much of spoilers or any spoiler at all. Anjum bhai, आइए. See, definitely there is because there is a lot of investment which people has done with the show, and a lot of intrigue, and the way it has ended for all the characters, for Maurya, the way we have seen Maurya and Akhanda, the way we have seen things at the wedding, and then Sharad. We see him. There is a lot of intrigue around that character right at the end of the season. So with all these things, there is a lot of curiosity and intrigue which people has. So definitely there is an effort to make it more grand, more dramatic. Definitely, as the story suggests, the story is definitely going to go ahead by keeping the flavor of Mirzapur intact. The story which will unfold would be dramatic. We can expect drama. The emotions would be high, and the grandeur. So it will be more elaborate. There will be some layers which will be added to the season, to the entire storyline. So these are the things, these are the aspects, these are the elements which are outstretched. Apart from that, my character, it has a very interesting graph in season 2, and what he does. There is definitely a shift, as you also suggested. You also said that there is a shift. What he wanted to do, he left everything, and now he wanted to be in this world. So there will be certain amount of choices which he's gonna make. We can definitely see him coming head to head with characters like Kalin, Munna, and Guddu. It's going to be very interesting, very dramatic, and within just in 8 days, we'll exactly know what he's up to. Okay. As far as I'm concerned, my character is concerned, I think the whole idea of going into a sequel is to build on the characters that we've already shown to the public, right? So I think Maurya's case is a classic case of underestimating your enemy. So in fact, when we were doing that scene, I asked my director and my writer several times कि अरे यार ऐसे थोड़ी ना होता है यार, ऐसे कैसे इसने मार दिया सबको. But just the shocking value of it कि ऐसा कर दिया उसने. हम लोग कई बार क्या है इस स्पेस में फंस जाते हैं लाइफ को लेके कि ऐसे थोड़ी ना होता है यार, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है. तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर ये है कि अभी ये हो गया है, अभी आगे क्या करोगे. तो उसी तर्ज पे जो है वो अभी सेकंड सीजन में एच आउट किया है कैरेक्टर, और कुछ तो करेगा ही वो. अभी देखते हैं क्या करेगा. Mirzapur's first season ended. It laid the foundation for multiple tracks with regards to each character. एक linear ending नहीं है उसका, बल्कि it's like a cliffhanger जो कि एक मास्टर की है जो अलग अलग सबप्लॉट्स के ताले भी खोलता है. फॉर एग्जाम्पल विद योर कैरेक्टर ऑफ रामचरण मौर्य, वो टीले पर है, उसके साथ ही मारे जा चुके हैं. एंड ऑफ कोर्स विद योर कैरेक्टर अंजुम, हिज होल ट्रैजेक्टरी चेंजेस. आप ही के को एक्टर पंकज त्रिपाठी सर कहते हैं कि एक एक्टर स्क्रिप्ट के लिए को ऑथर भी होता है, क्योंकि लेखक जो लिख चुका है उसके ऊपर आके एक एक्टर अपने रंग भरता है उस किरदार में, उस कहानी में. यह हुई उनकी बात. बट एज फार एज बोथ योर perspective is concerned with regards to the relationship of writing and the actor, what thought you have on this, both of you? यार मैं अपने आप को काफी हद तक डायरेक्टर्स एक्टर मानता हूँ, और मेरा काम भी उतना ही अच्छा हो पाएगा जितना अच्छी लिखाई होगी.
और अभी तक तो मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मैंने जो भी काम किया है उसकी लिखाई हमेशा बहुत अच्छी थी। अभी जो आपको लिखा हुआ मिलता है वो अगर फ्रेमवर्क सॉलिड है, उसका फाउंडेशन सॉलिड है, तो वो पंकज ने सही बोला है कि वो आप जाते हो, फिर आप अपना तजुर्बा, अपनी बात उस कैरेक्टर के थ्रू रखते हो, तो उसमें रंग भरते हैं। और वो कैसे रंग भरते हैं कि आप जिस भी राइटर ने वो कंटेंट लिखा है उसको आप जिंदा करते हो, तो उसको जिंदा करने में आप भी आते हो बीच में, और आपके लाइफ की फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, वो सारी चीजें भी आती हैं, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस आते हैं, आपने जो आसपास में देखा है, सुना है, वो सारी चीजें आप उसके अंदर डालते हो, जो कि शायद किसी केस में राइटर से छूट गई, क्योंकि वो एक अपने एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो हैविंग सेड दैट, एक बहुत ही सिनर्जी वाला प्रोसेस होता है ये, कोई एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है इसके अंदर। ऑब्वियसली वो जो आपको फ्रेमवर्क मिलता है उसका सबसे बड़ा हाथ होता है उसके अंदर, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसी सुपरफिशियल चीज कोई लिख के दे दे तो आधा टाइम तो दिमाग को ये नहीं समझ में आता है कि ये लिखा क्या है, इसको करूं क्या मैं। बट कोई अच्छा फ्रेमवर्क देता है तो फिर आपका भी, आपके अंदर से भी, आपके सबकॉन्शियस से ही चीजें निकलनी शुरू हो जाती है, बिकॉज वी आर ट्रेन्ड एक्टर्स, तो दिमाग और बॉडी ट्रेन्ड है उस चीज को ट्रांसलेट करने में, डिलीवर करने में। तो बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ मिलके एक कंटेंट को अलाइव करते हैं। और बिल्कुल हाँ, इत्तेफाक रखता हूँ पंकज की बात से कि एक्टर आके अपने रंग भरता है उसके अंदर, और वो उसका काम है भरना। अगर वो वही नहीं करेगा तो फिर मतलब सिर्फ डायलॉग बोलने आ रहा है तो कोई पॉइंट ही नहीं है। And how about you, Anju? Exactly. See, I always feel that if you get a good content in hand to work on, it's really a blessing. आपके पास जब एक अच्छा कंटेंट आता है, पर्सनली मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि मिर्जापुर में अगर हम बात करें इसकी, कि कंटेंट जैसे ही आप पढ़ते हैं, राइटिंग जो है वो आपने पढ़ना शुरू किया और आपके सामने वो चीजें आपके एक्सपीरियंस से, आपके ऑब्जर्वेशन से, या अगर कोई रिसर्च आपको करनी है उसको करने के लिए, वो सारी चीजें तुरंत शुरू हो जाता है साइमल्टेनियसली। And then that is also what you're supposed to do. It's the written material. You have to now make it alive. आपको उसे जीवंत करना है, और वो कैसे करना है वो आपका प्रोसेस है। वो आप उसकी अब दुनिया आप बनाएंगे, पहले अपने दिमाग में बनाएंगे, फिर वो आपके शरीर में बनेगी, आत्मा में आएगी, और जब आप उसको प्ले करेंगे तब वो लोगों तक पहुंचेगी। तो दैट इज दैट प्रोसेस। और वो प्रोसेस इतना ज्यादा एक दूसरे में समाया हुआ होता है, राइटर, एक्टर और फिर डायरेक्टर। ये ऐसा एक दूसरे में चीजें मिली हुई होती हैं कि उस तीनों के काम से और उनकी चीजों से एक आकार तैयार होता है जिसे आप फिर जीना शुरू करते हैं, आप प्ले करते हैं। सो डेफिनेटली और फिर वो करते 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 करते, अगर जैसे कई बार ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते आपको कोई चीज लगी, ऐसे आपने पढ़ी और फिर आप उस स्तर तक पहुंच गए जहां पे आपको लगा अच्छा हाँ ये एक चीज ऐसे क्या कर सकते हैं। सो फिर अगर उसकी गुंजाइश होती है तो वो कुछ चेंजेस वगैरह, ट्वीक, वो जो भी करना होता है वो राइटर के ऊपर है कि वो अगर करना चाहें तो वो सारी चीजें होती है। एक बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है। और लेकिन वो हो तभी सकता है जब आपके पास मटेरियल ऐसा हो जिसपे क्या, वही है ना, अगर फाउंडेशन बढ़िया होगी तभी इमारत अच्छी बनेगी। वो इमारत कितनी भी अच्छी अगर हो और फाउंडेशन ही नहीं है, मटेरियल ही नहीं है, राइटिंग नहीं है, तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ बन ही नहीं सकता ना। हवा में तो चीजें बन नहीं सकती। तो वो फ्लेवर ऐड करना, उसको बनाना, उसको जीवंत करना एक्टर का काम है, उसको बखूबी आता है, और वही रहता है प्रोसेस ज्यादातर। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीन प्ले आपका सोर्स मटेरियल होता है एज एन एक्टर, एंड फिर आप उसमें आके वैल्यूएशन करते हैं अपनी तरफ से। यहाँ तक का मामला तो पूरा क्लियर है, बट व्हेन यू गो ऑन लोकेशंस या रियल लाइफ लोकेशंस, वहाँ की जो आबो हवा है, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की बोली, नेचुरल लाइट, वहाँ के लोकल लोग, क्या ये सब भी आपको एज एन एक्टर हेल्प करते हैं अपने कैरेक्टर को और ब्यूटीफाई करने में? बहुत बिल्कुल करता है। ये तो पर्सनली काफी चीजें हुई कि जो कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे हम जिन जगहों पे हम शूट कर रहे थे, उनके साथ आपका बहुत ज्यादा एक कनेक्शन, मतलब मेरे कैरेक्टर के लिए बहुत जरूरी था। तो वो हो सकता है आपका कोई काम करने की जगह हो, आपका घर हो, वो कोई भी चीजें हैं, तो वो वहां पे जब आप एक लाइव लोकेशन पे, एक ऐसी लोकेशन पे जाते हैं, तो फिर आप बनाते हैं। जो मैं इमेजेस की बात कर रहा था कि वो तो लिख दिया है, वो चीजें लिखी हुई हैं, अब आप उसको खड़ा कर देना, उसको अलाइव कर देना, वो आपका काम।
और वो सब एक्टर्स का कि सबका एक अलग अलग प्रोसेस होता है। आपके पास इमेजेस होती हैं जब आप बात कर रहे हो उस सीन में, आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके दिमाग में, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मिर्जापुर के बारे में, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मिर्जापुर का वही मेरे दिमाग में चल रहा है ना इस समय, इमेजेस। तो ऐसी जब आप सीन में काम करते हुए जिन चीजों के बारे में आपका किरदार बात कर रहा है तो उसके दिमाग में भी वो इमेजेस होनी तो जरूरी है। वो इमेजेस बनाना आपका काम है। तो डेफिनेटली वो सारा टेम्परेचर, वो टेक्सचर, वो घर, वो लोग, वो एक्टर, को एक्टर, ये सारी चीजें सिनर्जी जब बनती हैं तभी कोई अच्छा काम, तभी कोई अच्छी चीज पैदा हो पाती है। तो हाँ, जरूरी। And you would like to add something to it? यार आई थिंक यही है। और अभी एक बड़ी कमाल की कुछ सालों से जो है वो एक वैल्यू एडिशन हुआ है हमारे सिनेमा में कि, और वो होना भी चाहिए कि जो लोकेशन है, जो आपका एनवायरनमेंट है, वो भी एक कैरेक्टर होता है। तो पहले के टाइम में इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था उसको, क्योंकि वो स्टार स्टडेड मामला था, तो स्टार के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते थे आप। तो पीछे मतलब सिर्फ पर्दा भी लगा दिया तो चलेगा काम, ठीक है ना। लेकिन अभी वो नहीं है। तो अभी अभी उस बात की वैल्यू समझ में आने लग गई है हम लोगों को कि लोकेशन भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। और आप बेसिकली जहाँ के आप कहानी दिखा रहे हो, वो लोग जहाँ पे उस जगह पे पले बड़े हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उनके ऊपर। तो जब भी आप एज एन एक्टर उन लोकेशन पे जाते हो जो सेलेक्ट करी गई है शूट के लिए, तो जाके उसको इम्बाइब करना चाहिए, उससे बहुत कुछ मिलता है। Your character of Sharad, when I look at it, broad strokes में मुझे ये The Godfather के माइकल कॉर्लियोनी के shades दिखते हैं इसमें। Initially he's reluctant to come into the world of crime and join the family business, but somehow he ends up becoming a part of it. So was Michael Corleone one of the reference points for your characters? Yeah, पूरा completely अलग। I know. I mean, yeah, this has also come up a few times earlier also. Structurally, yeah, I can say that there is a structurally, मतलब ये चीजें similar हैं कि somebody who didn't want to, despite of being from a crime world, he didn't want to be a part of that world, and then he comes. But reason अलग है, उस कैरेक्टर का रीजन अलग था, इस कैरेक्टर का रीजन अलग है, एंड डेफिनेटली उसके आगे की वो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, शायद ये चीज एक जैसी हो, लेकिन उसके आगे की जिंदगी और दुनिया एकदम ही अलग है। द चॉइसेस एंड द पाथ एंड एवरीथिंग, द एंटायर थिंग, इवन द एंटायर ड्रामा, द जो कैरेक्टर्स हैं, जो उनके आसपास की जो चीजें हैं, वो बहुत अलग हैं। इसीलिए वो रेफरेंस कभी नहीं बन पाया, क्योंकि दो गॉडफादर एंड माइकल कोर्लियोने इज वन ऑफ my and our so many people, so many actors favorite, one of the favorite, it's like a reference point। मतलब गॉडफादर इतनी बार देखी है कि याद भी नहीं है, लेकिन वो रेफरेंस इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि बहुत अलग है। वो देखा हुआ है और ये पढ़ा हुआ है, तो उसमें कोई सिमिलैरिटी थी नहीं, तो इसलिए वो एक कुछ रेफरेंस उसका बन नहीं पाया। जो भी रेफरेंस बने वो नॉर्मल जिंदगी से ही निकाल के रेफरेंसेस, और वहीं से उसी स्टडी से, ऑब्जर्वेशन से ही चीजें एक्सपीरियंस लेके डालेंगे, तभी बन। एंड लास्टली अमित, आप कानपुर में रहे हैं और वहाँ जो एक रंगबाजी का जो कल्चर है, रंगदारी का जो कल्चर है, वो भी आपने देखा है। नाउ ईगो और रेवेंज, ये दो बाइंडिंग फैक्टर हैं। आप दुनिया के कोई सी भी गैंगस्टर या क्राइम ड्रामा फिल्म उठा के देख लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं उसकी रूट्स ईगो में या फिर रेवेंज में आके एंड होती है कहानी की। तो क्योंकि आपने ये दुनिया देखी हुई है एक रंगदारी की, जहाँ पे ईगो और रेवेंज इतने मेजर इमोशंस या एक सेंस है, तो वो जो दुनिया आपने देखी हुई है इतनी क्लोजली, क्या वो आपको हेल्प करती है क्राइम वर्ल्ड में सेट कोई भी कहानी में आपके कैरेक्टर को और आपके साथ वाले एक्टर के कैरेक्टर को रीड करने में, भले फिर वो एक क्रिमिनल का कैरेक्टर या फिर एक राइटियस कॉप का कैरेक्टर? तो डज दिस थिंग हेल्प? 100% हेल्प सर। और मैंने बहुत क्लोज क्वार्टर से ये दुनिया देखी भी है, और बहुत ही विचित्र दुनिया है ये। जैसे कभी कभी हम लोग इस दुनिया को एकदम ब्लैक एंड व्हाइट दिखाते हैं, वैसा नहीं होता, क्योंकि और मैं भी हर कैरेक्टर को एक वल्नरेबिलिटी के साथ अप्रोच करता हूँ कि हो सकता है कि कोई आदमी बहुत बड़ा गैंगस्टर हो या बहुत बड़ा पुलिस वाला हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो घर में कॉन्शियस एफर्ट करके वो अपनी जिंदगी लाता ही ना।
तो ये भी हो सकता है। और आपका दिमाग जो है ना वो अडेप्ट कर लेता है कंपार्टमेंटलाइज करना चीजों को, कि घर का काम घर में, बाहर का काम नहीं लाना, घर का काम बाहर नहीं लेके जाना। तो इस तरीके की बहुत लोगों से मिला मैं। मौर्य इसी टाइप का आदमी, घर और अनफेज्ड है वो, तो ज्यादा, क्योंकि वो कोई अभी का कोई आईपीएस रिक्रूट नहीं है, नया रिक्रूट नहीं है, दुनिया देख चुका है बहुत, इसीलिए उसको भेजा गया है वहां पे कि शायद तुम ही ठीक कर पाओ उस जगह को। तो हेल्प करता है, बिल्कुल करता है। और ये जो एक हिडन वल्नरेबिलिटी होती है इन सारे कैरेक्टर्स में, जो कि existentially and essentially they are also human beings only, they're not gods or anything, so they can make mistakes, like Maurya makes one। और वो कहते हैं ना कि चकित करना हो किसी को तो ऐसी चीज करो जो कि उसने कभी सोची नहीं होगी हो सकती है। तो उसके साथ वही केस हुआ, वो कि उसने सोचा भी नहीं होगा कि मतलब पुलिस पार्टी पे ऐसा अटैक हो जाएगा, और जो कि यूजुअली नहीं होता है। बट अभी हम लोगों ने हाल में देखा है केस में, दूसरे वाले केस में, कि ऐसा भी हो सकता है, यू नो। तो आई थिंक वो तो ऐसी चीजें मैंने बहुत होती हुई देखी है यार, कि आप जो कि बहुत सारे लोग जो है ना वो अपनी ईगो को मिस्टेक करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट से। तो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बहुत सारे लोग सेल्फ रिस्पेक्ट की आड़ में ईगो पे खेलते हैं, बट मौर्य ऐसा नहीं है। मौर्य के लिए दिस इज अ केस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। So on that note, we have reached the end of this conversation. कुछ ऐसा सवाल जो मुझसे पूछना रह गया हो या जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो, so please feel free to go ahead. यार ये यहाँ मत लेके जाओ दोस्त। ऐसी कोई बात नहीं है, और ऐसी फिर बहुत बातें हो जाएंगी। थैंक यू। देखो मैं तो बात कर सकता हूँ, बट आपके पास में टाइम नहीं है अभी। थैंक यू अक्षय। थैंक यू अक्षय। थैंक यू। Yes, and I wish you all the best for Mirzap and all your upcoming projects. Thank you, brother. Yeah. Take care. Bye bye.